My dear students, welcome to Mathological, another important session on time, speed and distance. So let us start the session, and if you are liking the content and you have not subscribed to the YouTube channel yet, so make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. So first question, a bus covered a certain distance d at a uniform speed. If the bus could have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the usual time. If the bus was instead 10 km per hour slower, it would have taken 3 hours more than the usual time. So we have to find the distance d. पहले हम कन्वेंशनल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देन विल बी सॉल्विंग इट बाय फॉलोइंग अनदर अप्रोच विच विल बी स्लाइटली शॉर्टर, और एक कॉन्सेप्ट लेड अप्रोच होगा, उसको भी समझेंगे. ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं. एंड सबसे पहले पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करो. तो बस इज कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस डी, एंड इन द फर्स्ट केस इफ बस इज कवरिंग द डिस्टेंस एट द फास्टर स्पीड देन इट इज टेकिंग 2 hours लेस. अगर बस अपने आप को स्लोअर कर लेता है, इफ द बस वॉज 10 km per hour slower, इन दैट केस the time taken is 3 hours more than the usual time. Fine. Distance is d. And let us say usually the speed was s and time was t. Okay? In the usual case, let us say speed was s and time was t. So can we say distance will be equal to speed into time? Okay? But in the second scenario, if speed is 10 km per hour faster, यानी speed हो जाएगी s के बजाय s plus 10. So in such a case, the time taken is 2 hours less, यानी कि time will be t minus 2, and distance travel तो same ही है. So that implies कि this will also be equal to s plus 10 into t minus 2. Isn't it so? And if that is so, simplify कर लेते हैं इसको. So s into t, that becomes s into t minus 2s plus 10t minus 20. तो s into 2 कैंसिल आउट हो जाता है, रिमेनिंग बच जाएगा हमारा 2s minus 2s, यानी कि 10t minus 2s, and that is equal to 20. So this is our first equation. Now instead, if the speed was 10 km per hour slower, so in that case speed will be s minus 10. ध्यान से बातों को समझना, थोड़ा सा शुरुआत में हम टाइम लेंगे, फिर बाद में अप्रोच को डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहले कन्वेंशनल तरीके से बातों को समझ तो लें. तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, टाइम विल बी t plus 3, एंड अगेन दिस विल बी इक्वल टू s into t. डिस्टेंस तो बराबर ही होगा. So this is equal to s into t, and which is equal to s minus 10 into t plus 3. एक्सपैंड करते हैं ब्रैकेट को. सो दिस बिकम्स st plus 3s minus 10t minus 30. अगेन st से st कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 3s minus 10t, and that is equal to 30. दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज. सो सेकेंड इक्वेशन हमारा आया 3s minus 10t is equal to 30. If we add these two equations, so 10t से 10t cancel out हो जाएगा. 3s minus 2s will be s only, so s will be equal to 50. So speed will be 50 km per hour. Speed will be 50 km per hour. अब पुट कर दोगे किसी भी एक इक्वेशन में. लेट अस से हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया 3s minus 10t वाले में, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी हमें. तो 3s is 150, 10t will be equal to 150 minus 30, so t will be equal to 12 hours. स्पीड आ गया 50, टी हो गया 12 आवर्स. तो डिस्टेंस डी विल बी इक्वल टू 50 इंटू 12 विच इज 600 किलोमीटर्स. तो आंसर विल बी 600 किलोमीटर्स. इज दैट क्लियर? ठीक है, दिस इज वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वन वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर है? सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता है कि वी बीन गिवन कि इफ द स्पीड इज 10 km per hour फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द यूजुअल टाइम. तो फर्स्ट केस में हम टाइम का वैल्यू निकाल लें, सेकंड केस में टाइम का वैल्यू निकाल लें, और फिर उसको कंपेयर कर दें. ठीक है, सो इस अप्रोच को भी समझते हैं. तो इनिशियली है स्पीड इज s, टाइम इज t, बट इन द सेकंड सिनेरियो इफ स्पीड इज s plus 10, टाइम इज t minus 2, and in the third case when speed is s minus 10, time is t plus 3. okay, ठीक है. so if we compare these first two situations, तो फर्स्ट सिचुएशन में टाइम कितना होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी d अपॉन s, एंड इन द सेकंड केस टाइम विल बी d अपॉन s प्लस 10. एंड क्लियरली डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, t minus 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस आ रहा है हमारा 2 hours का. तो दिस डिफरेंस इज 2 hours. ऑर्डर का ध्यान रखना है. ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकंड, टाइम हमारा आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 2 hours का. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. अब एलसीएम ले लेते हैं. सो दिस विल बिकम d इंटू s प्लस 10
minus d into s, that divided by s into s plus 10, and that is equal to 2. तो d into s से d into s कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग बच जाएगा 10 times d अपॉन s into s plus 10, and that is equal to 2. ठीक है, तो फ्रॉम हेयर वील गेट दैट d is equal to 2, वैसे 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पे, तो d will be equal to s into s plus 10 divided by 5. ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन विल बी d अपॉन s, जो फर्स्ट हमारा इनिशियल टाइम लग रहा है और इसको कंपेयर करें फाइनल वाले टाइम से, तो माइनस ऑपोजिट होगा एक्चुअल में, d अपॉन s माइनस 10 पहले आएगा बिकॉज दैट टाइम इज लार्जर, अदरवाइज निगेटिव करना पड़ेगा. तो d अपॉन s माइनस 10 माइनस d अपॉन s, एंड दैट इज इक्वल टू t प्लस 3 माइनस t, यानी दैट इज इक्वल टू 3. तो अगेन सेम चीज करेंगे, d इंटू एस माइनस d इंटू एस माइनस 10, and that divided by s into s minus 10, and that is equal to 3. तो यहाँ से हमारा d s से ds कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 10 times d, तो 10d अपॉन s into s minus 10, that is equal to 3, and hence d will be equal to s into s minus 10 into 3 divided by 10. Now we can equate these two values. ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेट कर सकते हैं. So now the solution will be s into s plus 10 divide by 5, that will be equal to s into s minus 10 into 3 by 10. s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 रिमेनिंग बचेगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल इक्वल 2 times s plus 10, and that is equal to 3 times s minus 10. So 2s plus 20 is equal to 3s minus 30, and hence s will be equal to 50. यहाँ से स्पीड आ गया 50, और स्पीड 50 को जैसे ही पुट कर दोगे इक्वेशन में, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस. टाइम निकालने की ऐसा कोई जरूरत नहीं, स्पीड की वैल्यू को पुट करते हैं, डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, बट इस सेकंड मेथड को ही हम प्रॉपर्ली समझेंगे, और इंस्टेड ऑफ इतना लेंदी प्रोसीजर के विल बी डूइंग इट इन शॉर्टर टाइम, विल बी डूइंग इट इन शॉर्टर टाइम. क्या ये अप्रोच समझ में आता है? ठीक है, सो इसी अप्रोच को हम प्रॉपर्ली समझेंगे और इस अप्रोच को शॉर्टर टाइम में करेंगे, कम टाइम में करेंगे. ओके, ठीक है, शुरू करते हैं. So in any such question, initial speed let us say is s, initial time is t, क्योंकि s और t की वैल्यूज हमें गिवन नहीं है. ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, सेकंड कंडीशन में क्या होगा, देयर विल बी सम डिफरेंट स्पीड. ठीक है, मान लो इनिशियल स्पीड s1 है, टाइम है t1, और सेकंड केस में स्पीड है s2, टाइम है t2. ओके, सो वी कैन से कि d अपॉन s1 माइनस d अपॉन s2, ये दोनों टाइम की वैल्यूज है, दिस इज t1, दिस इज t2, this will be equal to t1 minus t2. Okay, now if we take LCM, this becomes d into s2 minus s1 divided by s1 into s2, and that is equal to t1 minus t2. So d becomes s1 s2 upon s2 minus s1 into t1 minus t2. अब इसी बात को हमें जनरलाइज करना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, and we'll be using this formula only. क्लियर है? क्या ये फॉर्मूला कह रहा है कि the distance in any such case will be, distance will be equal to the multiplication of those two speeds, ठीक है, s1 into s2 divided by difference of the two speeds, जो difference आएगा s1 और s2 का, multiplied by difference of time. एंड सिंस डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिफरेंस हमें लेना है एग्जैक्टली कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है स्पीड, दैट इज अनकंसर्न. डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है. सिमिलरली टाइम के लिए भी डिफरेंस कैलकुलेट करना है. तो डिस्टेंस विल बी s1 s2 अपॉन s1 और s2 का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई t1 और t2 का डिफरेंस. क्या ये बात समझ में आती है? फॉर्मूले को याद रखने का तरीका क्या है वो भी समझ लेते हैं. फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, सिंस हमें स्पीड और टाइम की वैल्यूज यहाँ पे पता नहीं है, व्हाट वी नो इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स एंड डिफरेंस बिटवीन टाइम्स. ओके, तो हमें समहाउ उससे ही इक्वेट करना है. अब सिंस हमारा डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड के प्लेस पे विल बी प्लेसिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू स्पीड्स s1 s2 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड्स. तो अगर दो स्पीड्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट से डिवाइड करोगे स्पीड से, तो हमें नेट में क्या मिलेगा, स्पीड ही का डायमेंशन तो मिलेगा. इजंट इट सो? स्पीड का डायमेंशन ही तो मिलेगा भाई. दिस इज मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाई किलोमीटर पर आवर. डायमेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. डिवाइडेड बाई किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर तो कैंसिल आउट हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई टाइम. बट टाइम भी यहाँ पे क्या है, एक्जैक्टली टाइम की वैल्यू पता नहीं, टाइम का डिफरेंस पता है, तो टाइम का डिफरेंस नोट करेंगे.
ठीक है। सो द फॉर्मूला विल बी डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 मल्टीप्लाइड बाई T1 T2। अब जैसे हम यहाँ पे स्पीड और टाइम के लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं, सिमिलरली इस फॉर्मूले में ये भी कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ स्पीड से डिवाइड करने के हम स्पीड्स को इक्वेट कर लें, यानी कि d by T1 will be the speed in first case, d by T2 will be speed in the second case, and that will be equal to S1 minus S2। तो यहां से हमें आउटकम मिल जाएगा that distance will be equal to T1 T2, एक सेकेंड, ये T1 T2 अपॉन T1 डिफरेंस T2 मल्टीप्लाइड बाई S1 डिफरेंस S2। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, बट हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे मोस्टली, बिकॉज टाइम की वैल्यूज में एक प्रॉब्लम ये है कि टाइम की वैल्यूज कई बार फ्रैक्शन में ही मिलेगा, बट स्पीड जनरली इंटीजर में ही होगा। सो दैट इज व्हाई वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड्स एंड मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ टाइम्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसी को प्रैक्टिस करते हैं एग्जिस्टिंग क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है। क्लियर? फॉर्मूला इज डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स multiplied by difference of speeds divided by difference of speeds and that multiplied by difference of time। Now we have, if we are doing the same question, in the first case क्या कह रहा है क्वेश्चन, bus covered a certain distance d at a uniform speed, bus could have been 10 km/h faster if it had taken 2 hours less। तो फर्स्ट सिनारियो में स्पीड में डिफरेंस कितना का है? 10 किलोमीटर का है, 10 km/h का है S1 डिफरेंस S2। और टाइम में डिफरेंस कितना है? द डिफरेंस इन टाइम T1 और T2 का डिफरेंस दैट इज 2 hours का है। एंड सेकंड स्पीड इज 10 km/h फास्टर देन द ओरिजिनल स्पीड। तो अगर ओरिजिनल स्पीड हमारा S है, ओरिजिनल टाइम T है, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू S1 S2, यानी कि ओरिजिनल स्पीड S है, देन सेकंड स्पीड है S + 10 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड विच इज 10 ओनली, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ टाइम्स। और डिफरेंस ऑफ टाइम हमेशा आर में रहेगा, क्योंकि हमारा स्पीड भी km/h में है। ठीक है, तो सेम डायमेंशन में रहेगा, अगर मीटर पर सेकंड में होता तो सेकंड में भी हो सकता था। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस विल बी आवर डिस्टेंस इन द फर्स्ट केस। और सेकंड केस में डिस्टेंस क्या आएगा हमारा? दैट विल बी एस इज द फर्स्ट स्पीड एंड सेकंड स्पीड इज 10 km/h स्लोअर एंड टाइम इज 3 hours मोर। तो s इंटू s - 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3, ये 3 हमारा क्या है? डिफरेंस ऑफ टाइम। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेफिनेटली बचेगा 2s + 20 दैट इज इक्वल टू 3s - 30 एंड हेंस s विल बी इक्वल टू 50 km/h। तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट द आंसर फॉर डिस्टेंस, पुट कर देंगे और डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 600 किलोमीटर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक दो क्वेश्चंस में और इसको अप्लाई करते हैं ताकि और कंसोलिडेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a flight covering a distance of 1200 kilometers could reduce the travel time by 30 minutes due to an additive tailwind that increases the average speed by 120 km/h। So what was the duration of the flight in hours? ड्यूरेशन पूछ रहा है क्वेश्चन, और हमें क्या गिवन है? फ्लाइट कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर्स, डिस्टेंस इज गिवन, कैन रिड्यूस द ट्रेवल टाइम बाय 30 मिनट्स। ओके, ड्यू टू एन एडिटिव टेलविंड दैट इंक्रीजेस द एवरेज स्पीड बाय 120 km/h। Okay, so initial speed if was s, new speed is s plus 120, or if initial time was t, now the time is t minus half। Okay, distance 1200 है, तो distance will be equal to 1200 kilometers and that will be equal to s1 into s2, so s into s plus 120 divide by difference of speeds that is 120 and that multiplied by difference of times which is 1 by 2, which is 1 by 2। So s into s plus 120 comes out to be 1200 into 240। ओके, ठीक है। अब क्योंकि डिफरेंस हमें क्या चाहिए, इन दोनों वैल्यूज को जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे बन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा है, बट क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करेंगे, हमें वैल्यूज s का आइडेंटिफाई करना है। डिफरेंस कितना है? फर्स्ट टर्म s है, सेकंड है s plus 120 एंड डिफरेंस हमारा आ रहा है 120 का। तो समहाउ वी हैव टू मेक द डिफरेंस हियर एज वेल 120। अभी डिफरेंस यहाँ पे एक्चुअली काफी ज्यादा है, 960 है। तो व्हाट विल डू, विल डिवाइड 1200 by 2 एंड मल्टीप्लाई 240 by 2। बेसिकली वी आर टेकिंग 2 from 1200 एंड मल्टीप्लाइंग दैट विद 240। तो नंबर विल बी 600 into 480, 600 into 480 आ जाएगा। और क्लियरली हमारा यहाँ पे डिफरेंस 120 का ही आ रहा है,
ठीक है, सो क्लियरली एस क्या आ जाएगा हमारा, एस विल बी इक्वल टू 480 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल स्पीड विल बी 480 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमारा टोटल 1200 है, तो टाइम क्या आ जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट क्या आ जाएगा, क्या बात क्लियर है, ठीक है। ओके, तो ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट क्या आ जाएगा, स्पीड हमारा है 480 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन विल बी 1200 बाई 480 इनिशियली, दैट विल बी 2.5 आवर्स। बट ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट पूछ रहा है बिकॉज 30 मिनट्स का एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम से रिड्यूस हुआ है हमारा ड्यू टू एडिटिव टेल विंड। एक्चुअल टाइम कितना आएगा, दिस इज टाइम इफ देयर वाज नो टेल विंड, बट विद टेल विंड टाइम विल बी, और एक्चुअल टाइम विल बी 2 आवर्स ओनली, बिकॉज 30 मिनट्स कम हो जाएगा, बिकॉज स्पीड इज 600 इन एक्चुअलिटी ड्यू टू इंक्रीज इन द एवरेज स्पीड बाई 120 किलोमीटर पर आवर। सो इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car travels a 750 kilometer journey at an average speed of s km per hour. If it had increased its speed by 18 km per hour, the journey would have been 125 minutes shorter. So we have to find the value of s. S का value क्या होगा, so distance is given as 750 kilometers and that will be equal to initially speed s है, so speed increases by 18 km per hour and journey reduces by 125 minutes. So s1 into s2 यानी s into s plus 18 divided by difference of s1 and s2 which is 18 km per hour and that multiplied by difference in time which is 125 minutes, but hour में convert करेंगे तो this will become 125 by 60. okay, and this is equal to 750, 125 से जाएगा ये 6 times, so s into s plus 18 will be equal to 6 into 18 into 60. डिफरेंस चाहिए हमको 18 का, और यहाँ पे if we multiply these two numbers this becomes 108. So this becomes 108 into 60. डिफरेंस आ रहा है 48 का, डिफरेंस को हमें कम करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। और 2 और 3 के ही मल्टीपल है, सारे के सारे जो नंबर्स हमारे 2 और 3 है, 5 आ रहा है एक एक्स्ट्रा, ठीक है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो इफ वी टेक 1 3 आउट फ्रॉम हियर दिस विल बिकम 36 into 3 into 30 into 2. So now we can multiply this 30 into 3 and 36 and 2. This becomes 72 into 90. So now the difference is of 18 only. So S हमारा आ जाएगा, speed will be 72 किलोमीटर पर आवर. That will be our answer. And as we've seen initially कि हम फॉर्मूला बना के प्रॉपरली डिस्टेंस अपॉन स्पीड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा, यहाँ पे स्ट्रेट अवे हमें आंसर आ जाएगा इफ यू कैन रिमेंबर दैट, ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A car left 3 minutes later than the scheduled time, and in order to reach the destination 126 km away in time, it has to increase the speed by 6 km per hour from the usual speed. So what is the usual speed of the car? Car left 3 minutes later than the scheduled time, and in order to reach the destination 126 km away in time, it has to increase the speed by 6 km per hour from the usual speed. So what is the usual speed of the car? That is what the question is asking. Okay, okay, so you can comment the answer to this question. क्या आएगा आंसर? Okay, we already discussed few questions on the same concept, so you can directly comment कि क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑन द सेशन। A car travels from P to Q at a constant speed. If its speed was increased by 10 km per hour, it would have taken 1 hour less to cover the distance. It would have taken further 45 minutes lesser if the speed was further increased by 10 km per hour. So distance between the two cities will be what? So initially, if speed is s and time is t, distance is d. So initially speed is s, time is t. Now speed is increased by 10 km per hour, यानी कि new speed is s plus 10, and time will be 1 hour lesser, यानी कि time will be t minus 1. Now speed is further increased by 10 km per hour, so new speed will be s plus 20, and time is further decreased by 45 minutes. So already t minus 1 था, now the time will be t minus 1 minus 45 minutes, which is 3 by 4. So this becomes t minus 7 by 4. Okay. So distance d will be equal to s1 into s2. So in the first case, this is s into s plus 10 divided by difference of speed which is 10 and multiplied by difference of time which is 1 hour into 1. And the second scenario, the speeds are s plus 10 and s plus 20. S plus 10
into s plus 20 divided by difference of speeds which is 10 km per hour and that multiplied by difference of time. अब t minus 1 और t minus 7/4 में डिफरेंस कितना है? 3/4 आवर्स का डिफरेंस है, तो दैट मल्टीप्लाइड बाई 3/4. ठीक है, s plus 10 से s plus 10 will get cancelled out, 10 से 10 will get cancelled out, so this becomes 4s is equal to 3s plus 60. So speed s will be 60 km per hour and hence distance between the two cities will be equal to 60 into 70 by 10, 0 से 0 गया, 60 into 7, 420 kilometers will be the distance. Option A. क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, सो आंसर विल बी डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज विल बी 420 kilometers. Is that clear? So we've understood the concept. A beautiful concept और ये क्वेश्चंस को बहुत आसान कर देता है. You are understanding that? ठीक है कि you do not have to make the equations all the time. For this question, you can directly solve it. ठीक है, and same thing can be applied for time as well. Same thing can also be applied for time as well. Time से भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट डिस्टेंस स्पीड से कैलकुलेट करना इज मच सिंपलर बिकॉज जैसे इन दिस क्वेश्चन ओनली द डिफरेंस बिटवीन टाइम इज 3/4 आवर. सो ऑब्वियसली फ्रैक्शंस में चीज़ों को करने में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, अदरवाइज देयर इज नो अदर प्रॉब्लम. क्लियर है? ठीक है, सो आई बिलीव कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. एंड अगर पसंद आया है सेशन तो सेशन को लाइक जरूर करना है, अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना. एंड इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल. All your feedback and appreciation is welcome. That's all for this session. Bye bye. Take care and keep learning.